بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا لیکچر ہے شعری اصطلاحات۔ شعری اصطلاحات وہ اصطلاحات جو شاعری میں استعمال کی جاتی ہیں۔ بنیادی اصطلاح شاعری میں مصرع ہے۔ مصرع عربی زبان کا لفظ ہے اور مصرع کا لغوی حقیقی لفظی معنی ایک کواڑ، ایک پٹ اور ایک تختے کے ہیں۔ اب ہم مصرع کی تعریف، آدھے شعر یا نصف بیت کو مصرع کہتے ہیں۔ آدھے شعر یا نصف بیت کو مصرع کہتے ہیں۔ دو مصرے ایک شعر کو جنم دیتے ہیں۔ دو مصروں سے مل کر ایک شعر بنتا ہے، اور جیسے پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا۔ یہ سب کیا ہیں؟ مصرع کی مثالیں ہیں۔ اب بیت کا ذکر ہوا، نصف بیت کو مصرع کہتے ہیں، تو بیت کسے کہتے ہیں؟ بیت شعر کو کہتے ہیں، اور بیت جس شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں اسے بیت کہتے ہیں۔ اور شعر کلام موزوں کو شعر کہتے ہیں۔ کلام موزوں سے مراد ایسا کلام جو کسی خاص بحر میں کسی خاص وزن پر کہا گیا ہو، اس کو شعر کہتے ہیں۔ مثالیں: پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے باغ گل ہی نہ جانے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ اگلی اصطلاح ہے فرد۔ فرد مفرد سے بنا ہے۔ فرد سے کا لفظی معنی اکیلا، تنہا۔ فرد کی تعریف: کسی شاعر کا ایسا شعر جو تنہا ہو، اکیلا ہو، یعنی کسی نظم، غزل، قطع، قصیدہ یا مثنوی کا جز نہ ہو، حصہ نہ ہو۔ ایسے اشعار کے دونوں مصروں کا ہم قافیہ ہونا ضروری نہیں۔ ایسے متفرق اور مفرد اشعار شاعر کے دیوان میں فردیات کے نام سے، عنوان سے درج ہوتے ہیں۔ فردیات کی مثالیں: ذرا اے کنج مرقد یاد رکھنا اس حمیت کو، کہ گھر ویران کر کے ہم تجھے آباد کرتے ہیں، چند تصویریں بتاں چند حسینوں کے خطوط، چند تصویریں بتاں چند حسینوں کے خطوط، بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سامان نکلا، یہ کون چھوڑ گیا رات کے اندھیرے میں، یہ کون چھوڑ گیا رات کے اندھیرے میں، شکست کھائے ہوئے دشمنوں کے گھیرے میں۔ یہ فردیات کی مثالیں۔ اگلی اصطلاح شاعری کی مطلع۔ مطلع عربی زبان کا لفظ ہے
और तुलू से निकला है, मतला तुलू से निकला है, और तुलू का माना निकलना, तुलू होना, और मतला का लफ्ज़ी और लुग़वी माना लफ्ज़ी और लुग़वी माना निकलने की जगह, तुलू होने की जगह। सूरज के तुलू होने की जगह को भी मतला कहते हैं। और शेर के किसी भी गज़ल या कसीदे के पहले शेर को जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हों, उसको भी मतला इसीलिए कहा जाता है चूँकि उससे गज़ल का आगाज़ होता है, उससे गज़ल का आगाज़ होता है। तो लिहाजा मतला क़वाइद की रूह से, मतला क़वाइद की रूह से क्या है, इसम ज़र्फ़ मकान, इसम ज़र्फ़ मकान है। और मतला की इस्तिलाही तारीफ़ गज़ल या कसीदे का वो पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं, हम काफिया हूँ, और बसा औक़ात हम रदीफ़ भी होते हैं, तो वो पहला शेर मतला कहलाता है। ऐसा पहला शेर मतला कहलाता है जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हों। हम काफिया होना शर्त है, हम रदीफ़ होना शर्त नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात हम रदीफ़ भी होते हैं, तो उसको हम मतला कहेंगे। जैसे इसकी मिसाल, जग में आकर इधर उधर देखा, जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नज़र जिधर देखा, तू ही आया नज़र जिधर देखा, सुन तो सही जहाँ में है तेरा फसाना क्या, सुन तो सही जहाँ में है तेरा फसाना क्या, कहती है खल्के खुदा, कहती है तुझको, कहती है तुझको खल्के खुदा गायबाना क्या। ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता, इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब इसमें एक और इस्तिलाह को समझना बहुत ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हुस्न मतला, हुस्न मतला, मतला का हुस्न, तो ये तो इसका माना हुआ, और मतला की खूबसूरती, मतला का हुस्न, ठीक है। तो हुस्न मतला की तारीफ़ ये है कि असल मतला के फ़ौरन बाद आने वाले शेर को हुस्न मतला कहते हैं। असल शेर, असल मतला के फ़ौरन बाद आने वाले शेर को हुस्न मतला कहते हैं। जैसे पहला शेर जिसके दोनों मिसरे क्या होते हैं, हम काफिया हूँ, तो वो मतला कहलाएगा, और उसके बाद जो दूसरा शेर है वो हुस्न मतला कहलाएगा। अब एक गज़ल में कंसेक्टिव एक से ज़्यादा मतला भी हो सकते हैं, आ सकते हैं, तो लिहाजा अगर पहले शेर के अलावा दूसरे शेर के भी दोनों में से हम काफिया हूँ, तो वो मतला सानी कहलाएगा, फिर वो हुस्न मतला नहीं कहलाएगा, फिर वो मतला सानी कहलाएगा, और फिर तीसरा शेर जो है वो हुस्न मतला कहलाएगा। अगर तीसरा शेर जो है उसके भी दोनों में से हम काफिया हूँ, उसके भी दोनों में से हम काफिया हूँ, तो फिर चौथा शेर हुस्न मतला कहलाएगा। अब इसकी मिसाल, जैसे कौन दुनिया में बावफा निकला, कौन दुनिया में बावफा निकला, ये तुम्हारी ज़ुबान से क्या निकला, ये तुम्हारी ज़ुबान से क्या निकला। ये मतला है, ये मतला है। इसी तरह एक मतला है, अश्क आंखों में कब नहीं आता, अश्क आंखों में कब नहीं आता, लहू आता है जब नहीं आता। ये मतला है, दोनों मिसरे हम काफिया हैं। इसके बाद
सेकंड शेर जो है इसका दूसरा शेर वो है, होश जाता नहीं रहा लेकिन, होश जाता नहीं रहा लेकिन जब वो आता है तब नहीं आता। ये दूसरा शेर है और इसके दोनों मिसरे हम काफिया नहीं हैं, और ये चूंकि सेकंड शेर है, असल मतला के फौरन बाद आने वाला शेर यही है, लिहाजा ये शेर हुस्न मतला है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जिसमें मतला सानी भी होगा, मिसाल ऐसी मिसाल की तरफ जिसमें मतला और उसके बाद मतला सानी भी होगा। फिर तीसरा शेर जो है वो हुस्न मतला होगा। उसकी मिसाल है, कौन दुनिया में बावफा निकला, कौन दुनिया में बावफा निकला, ये तुम्हारी जुबान से क्या निकला। ये मतला है, ये शेर मतला है, इसके दोनों में से हम काफिया है। इसके बाद दूसरा शेर जो है वो भी, उसके भी दोनों मिसरे हम काफिया हैं। वो इधर भूल कर जो आ निकला, वो इधर भूल कर जो आ निकला, मैंने जाना कि मुद्दआ निकला, मैंने जाना कि मुद्दआ निकला। अब ये इसके भी दोनों में से हम काफिया हैं। मुद्दआ और मुद्दआ ये हम आवाज़ अल्फाज हैं, काफिया हैं, और लिहाजा ये शेर हुस्न मतला नहीं बल्कि मतला सानी है, मतला सानी है। इसके बाद तीसरा शेर जो है वो वो है, बुत कदा देखकर हुई इबरत, बुत कदा देखकर हुई इबरत, मेरे मुंह से खुदा खुदा निकला। अब इसमें दोनों में से हम काफिया नहीं हैं और ये तीसरा शेर है। अब ये तीसरा शेर हुस्न मतला है। अब ये तीसरा शेर जो है ये हुस्न मतला है। इसके बाद इस्तिलाह है मतला के साथ मक्ता। मक्ता की तरफ बढ़ते हैं तो मक्ता कता से बना है, ये भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। मक्ता कता से बना है, ये भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, और इसका लफ्ज़ी लुग़वी माना मक्ता का काटने की जगह, काटने की जगह, और ये भी क़वाइद की रूह से इसम ज़र्फ़ मकां है, इसम ज़र्फ़ मकां है, याद रखिएगा बेटा, इसम ज़र्फ़ मकां है। और इसका इस्तिलाही माना यानी तारीफ़ मक्ता की गज़ल या कसीदे का ऐसा आखिरी शेर जिसमें शायर अपना नाम या तखल्लुस इस्तेमाल करता है, उसे उस आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। अगर शायर अपना नाम या तखल्लुस इस्तेमाल न करे आखिरी शेर में तो फिर वो मक्ता नहीं कहलाएगा, फिर वो आखिरी शेर कहलाएगा, गज़ल या कसीदे का आखिरी शेर कहलाएगा। और मक्ता को मक्ता इसलिए कहा जाता है चूँकि वहाँ पर गज़ल कता कर दी जाती है, गज़ल ख़त्म कर दी जाती है, मुकम्मल कर दी जाती है, इस वजह से उसको मक्ता कहते हैं, काटने की जगह। तो इसके लिए मक्ता होने के लिए दो शराइत हैं, मक्ता शेर के मक्ता होने के लिए दो शराइत हैं। पहली शर्त यह है कि गज़ल का आखिरी शेर हो, दूसरी शर्त यह है कि शायर ने उसमें अपना नाम या तखल्लुस इस्तेमाल किया हो। इसकी मिसाल जैसे, सख्त काफिर था जिसने पहले मीर, सख्त काफिर था जिसने पहले मीर मज़हब इश्क इख्तियार किया। दूसरी मिसाल, दिल तो मेरा उदास है नासिर, दिल तो मेरा उदास है नासिर, शहर क्यों साएं साएं करता है। तीसरा शेर मिसाल इसकी, उमर सारी तो कटी इश्के बुता में मोमिन, उमर सारी तो कटी इश्के बुता में मोमिन, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे। ये मेरे बेटे मक्ता की मिसालें और मक्ता के अशार। तो ये आज का हमारा लेक्चर मुकम्मल हुआ।
اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت اچھے نمبروں میں کامیاب